So Devansh, as you remember that we studied parametric form of parabola also. If the parabola is y square is equal to 4ax, then its parametric form is at square comma 2at. This is how we can represent a point in that parabola. Do you remember this, Devansh? Okay, now if I ask you that you have to find the equation of normal. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी किया था क्या हम लोगों ने? नहीं किया था। लेट अस डू दिस। तो इस पॉइंट पे हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में जो पॉइंट मैंने लिखा है इस पैराबोला का, पैराबोला इज द स्टैंडर्ड राइट ओपन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो इस पैराबोला पे अगर हमें एक वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ है p, तो जो नॉर्मल बनता है उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो नॉर्मल इज लाइक दिस, यू नो द डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल। Normal is actually perpendicular to the tangent at that point. So if this is the tangent, then perpendicular to it is the normal. This is tangent and this is normal. Now if we want to find the equation of the normal, you remember the equation of the tangent, what it was. So if you don't remember, I'll just recap it. Equation of tangent at p. So we found equation of tangent at point p as y1 is equal to 2ax plus xy. तो बेसिकली अगर हमारे पास पॉइंट इस फॉर्म में दिया हुआ है तो y1 का मतलब हो जाएगा 2at और x1 का मतलब हो जाएगा at स्क्वायर, राइट? So this will become 2a and 2a will cancel. Py is equal to x plus at square, or we can write it as y is equal to t से डिवाइड कर देंगे 1 by tx plus a t बच जाएगा। So this is how we can write the equation of the tangent, right? ये हमने शायद पिछली बार किया होगा, तो tangent हम लोगों ने कर लिया था पिछली बार, as far as I remember. So this is the equation of the tangent at the given point P. So what is the slope of this tangent? As you can see, y is equal to mx plus c is actually the form in which this is expressed. So m is actually slope of the tangent, which is 1 by t. So m is the slope of the tangent, which is 1 by t here. तो हम अगर पैरामेट्रिक पॉइंट ले रहे हैं at स्क्वायर कॉमा 2at, तो जो टैंजेंट का स्लोप आएगा वो आएगा m इज इक्वल टू 1 बाई t। तो इससे हम फर्दर ये कह सकते हैं कि जो नॉर्मल का स्लोप होगा, कोई बता सकता है कि नॉर्मल का स्लोप फिर क्या होना चाहिए? नॉर्मल m डैश स्लोप अगर मानते हैं तो m डैश जो होगा m का रेसिप्रोकल और निगेटिव होगा, तो दिस शुड बी माइनस t, राइट? तो ये नॉर्मल का स्लोप हो गया। पहले यहाँ तक लिख लो। ये तुम याद रख सकते हो कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर पैराबोला है और उसको पैरामेट्रिक पॉइंट में लिखा जा रहा है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी 1 by t, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज माइनस t। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाली जा सकती है, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है उसी तरीके से। ये लिख लिया सर ने? यस, आई होप आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। Yes, Sumit sir.
लिख लिया? यस सर। अब हम लोग आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट टू पॉइंट। So what we have actually here is the point at square comma 280 and the slope of the normal. तो अगर ये दो चीजें हमें पता है तो इससे इक्वेशन लिखना आसान है। y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह 280 हो गया, अपॉन x माइनस x1, x1 की जगह 80 स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो कि हो गया माइनस टी। ये हो जाएगा y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू minus tx plus 280 plus 83. So this is the equation of the normal. So slope of the normal is minus t, right? And slope of the tangent is 1 by t. ये याद रखना, इससे कई लंबे लंबे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं। Slope of the tangent is 1 by t and slope of the normal is minus t, where t is the parametric point of the parabola y square equal to 4ax. T is actually the parameter used here. Actually, the point is at square comma 280. T is the parameter which is used here. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Just write this down. Now let us discuss few questions based on what we did in the last class also and what we have done till here also. हो जाएगा तो बता देना। I hope सबने लिख लिया होगा। Now a question I'm giving to you: if the line 2x minus 3y plus 6 equal to 0 is a tangent to the parabola y square is equal to 4ax, then find a. Second question is draw y minus 2 whole square, ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है, शिफ्टेड हमने पढ़ रखा है, इज इक्वल टू x plus 4 का ग्राफ। थर्ड क्वेश्चन यू हैव find equation of tangent at minus 4 comma minus 4 on x square equal to minus 4y. Try these three questions.
If in any step you feel difficulty, you can just share with me and I will guide you. First of all, इस इक्वेशन को तुम्हें किस फॉर्म में लिखना होगा? राइट इट इन द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c. ये कर सकते हो. 2x plus 6 is equal to 3y, which means 3y is equal to 2x plus 6, which means y is equal to 2 upon 3x plus 6 by 3 will be. ये हो गया y is equal to mx plus c का फॉर्म. इसके बाद हम क्या करेंगे? हम क्या अगर ये लाइन tangent है to the given parabola, if this line is a tangent to the parabola y square is equal to 4ax, तो उस केस में c क्या होता था? डू यू रिमेम्बर? c इज इक्वल टू क्या होता था? इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c is tangent to parabola y square is equal to 4ax, तो c क्या होता था? ये बताओ. c is equal to a upon m, ये होता था. तो यहाँ पर जो c है वो है 2 और जो m है वो है 2/3. दिस इज m, दिस इज c. Therefore c which is 2 is equal to a by m which is 2/3. और जो a है वही हमें निकालना है, तो यहाँ से a नहीं निकल आएगा. a will be equal to 4/3. This will be your answer. Getting it? Have you understood, every one of you? No, yeah, yes. शुद्ध भाषा समझाइए. इसकी थ्योरी हमने पिछली क्लास में की थी. थ्योरी क्या थी पहले मैं वो एक बार बता देता हूँ तुमको. कि अगर y is equal to mx plus c is a tangent to the parabola y square is equal to 4ax, then c is equal to a by m. ये हमने थ्योरी की. ठीक है, मतलब ये हमारे पास एक राइट ओपनिंग पैराबोला इस तरीके का है. और इस पे अगर हम y इक्वल टू mx प्लस c को एज अ टैंजेंट बनाते हैं, टैंजेंट tangent at this point P, right? तो उस केस में जो इसका C होता है, जिसको हम ज्योमेट्रिकली कौन सा पॉइंट कहते हैं? ये वाला पॉइंट, इसका जो इंटरसेप्ट y एक्सिस के साथ है, दिस इज कॉल्ड C. तो ये जो C होता है वो a by m के बराबर होता है. C is equal to a by m. Therefore हम tangent को लिखते हैं कि it is of the form y is equal to mx plus a by m. अगर इससे ज्यादा C की वैल्यू ले लिया तो दैट विल बी नथिंग, और इससे कम C की वैल्यू ले लिया तो दैट विल बी अ कॉर्ड. तो इस केस में क्या हो जाएगा? C is greater than a by m. इस केस में क्या हो जाएगा? C is less than a by m.
और जब tangent ले रहे हैं तो C is equal to A by M. Do you remember? Is it clear? No. Yes. Devansh? क्या हुआ? अब क्लियर हुआ? इसकी थ्योरी क्लियर हुई या नहीं? पिछली क्लास में हमने की थी. हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो. आरुषि, आशीष, एम आई ऑडिबल? Okay, Ashish. Okay, there. Okay. So now we apply this theory on this question. When we apply this theory, so first of all, we should write this equation in this form. How can we do? We can rearrange. So 2x plus 6 is equal to 3y, which means 3y is equal to 2x plus 6. अब 3 से डिवाइड कर देते हैं. Y is equal to 2 by 3 x plus 6 by 3. So y is equal to 2 by 3x plus 2. ये आ गया y is equal to mx plus c का फॉर्म. इसमें से हम m क्या देख सकते हैं कि m is equal to 2 by 3 and c is equal to 2. Now अगर ये tangent है, as they are saying this is a tangent to this parabola, तो c is equal to क्या होना चाहिए था? a by m होना चाहिए था. a हमें पता नहीं है, दिस a, यही a हमें निकालना है. तो यहाँ पे c is equal to a by m अगर करते हैं तो c की वैल्यू 2 है, a हमें निकालना है, और m की वैल्यू 2 by 3. तो फाइनली क्रॉस मल्टीप्लाई करके a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 by 3. दिस विल बी योर आंसर. Is it clear? Yes, sir. Try next question. Draw the graph of y minus 2 whole square is equal to x plus 4. Then I will also draw it and you can compare with your graph. Done, sir. Okay. Try next question. Draw the graph of y minus 2 whole square is equal to x plus 4.
सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर, ये किस तरह का पैराबोला है, राइट ओपनिंग है, लेफ्ट ओपनिंग है, अपवर्ड ओपनिंग है या डाउनवर्ड ओपनिंग। पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करेंगे। तो आउट ऑफ द फोर फॉर्म्स कौन कौन से थे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ऊपर वाला राइट ओपनिंग होता था, नीचे वाला लेफ्ट ओपनिंग। फिर होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये अपवर्ड ओपनिंग होता था। और फिर होता था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ये डाउनवर्ड ओपनिंग होता था। तो ये चार फॉर्म्स है पैराबोला के जो हमने पढ़े थे, ठीक है। इसी का शिफ्टेड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये किसका शिफ्टेड फॉर्म लग रहा है? y-2 पे स्क्वायर है और इधर x+4 है। तो दिस इज द शिफ्टेड फॉर्म ऑफ दिस पैराबोला, ठीक है। अब इस फॉर्म में इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे, y-2 का होल स्क्वायर तो वैसे ही रहने देते हैं और x+4 में से 4 कॉमन निकाल लेते हैं। तो x के नीचे 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 था तो नहीं, तो जब कॉमन निकाल रहे हैं तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ पर का जो 4 है वो 1 बन जाएगा। तो अब ये हो गया इस फॉर्म का। अब हम क्या करेंगे, y-2 होल स्क्वायर और 4, लेकिन हमें x का कोफिशिएंट जो है वो 1 चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो हमने ये जो स्टेप किया है इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग। इसको हम क्या करेंगे, 4 इंटू 1/4, वो 1 ही हो जाएगा, इंटू x+4, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे लिखने से क्या होगा कि 4 इंटू 1/4, और ये लिख सकते हैं x माइनस -4। तो बेसिकली ये शिफ्टेड पैराबोला जो होता था, इसका जो शिफ्टेड फॉर्म होता था, इसका जो शिफ्टेड पैराबोला होता था जिसका वर्टेक्स होता था h, इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स तो 0, 0। तो शिफ्ट करते हैं अगर इसको, और उसका वर्टेक्स है h, तो इसको लिख देते हैं y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x-h। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो k की जगह यहाँ पर 2 है, a की जगह पे यहाँ पे 1/4 है और h की जगह पे यहाँ पे -4 है। दिस इज h, दिस इज a एंड दिस इज k। तो y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1/4 इंटू x माइनस h हो जाएगा। तो k 2 है, a 1/4 है और h -4 है। तो इससे सबसे पहले हमें ये बात समझ में आ रही है कि ये जो राइट ओपनिंग पैराबोला होगा, इसका वर्टेक्स होगा h, k, मतलब -4, 2। -4 यहाँ हो गया, 2 यहाँ पे हो गया, तो दिस इज द वर्टेक्स -4, और जो पैराबोला बन रहा है वो पैराबोला कुछ इस तरह का बन रहा है। राइट ओपनिंग तो है, लेकिन दिस इज अ शिफ्टेड पैराबोला। और इसकी ये जो हो जाएगी एक्सिस यहाँ पे हो जाएगी और टैंजेंट एट द वर्टेक्स यहाँ पर हो जाएगा। तो बेसिकली ये है गया इसका ग्राफ। बाकी ए जो है वो 1/4 है। तो ए का क्या यूज होता था? ए मतलब वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस, तो वो है 1/4। इज दिस ओके? Ashish, so just write this down.
नाउ डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, अगर तुमने थ्योरी पे ध्यान दिया होगा जो मैंने तुम्हें बताया था, तो इतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी एक जनरल थ्योरी इसकी मैं तुम्हें बता देता हूँ फिर से। व्हाट इज द जनरल थ्योरी अबाउट एनी कोनिक, नॉट ओनली पैराबोला, चाहे सर्कल हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे इलिप्स हो, चाहे पैराबोला हो। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें मिल रही है सेकेंड डिग्री की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, तो दिस इज अ सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ये कोई भी कोनिक हो सकता है अंडर डिफरेंट कंडीशंस। वो कंडीशन शायद मैंने बताए होंगे, नहीं बताए होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये कोई भी कोनिक हो सकता है, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं एस इज इक्वल टू 0। तो इस पे अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है x1 कॉमा y1, यानी पॉइंट x1 y1 लाई कर रहा है ऑन द कर्व s इज इक्वल टू 0, तो वहां पर जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी, ठीक है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट की इक्वेशन बनेगी उसको तुम डायरेक्टली इस टेक्निक से लिख सकते हो, जिसको हम कहते हैं t इज इक्वल टू 0। व्हाट इज t? व्हाट वी डू बेसिकली, वी रिप्लेस x स्क्वायर बाई x इंटू x1, y स्क्वायर बाई y इंटू y1, x इंटू y बाई हाफ x y1 प्लस x1y, x बाई हाफ x प्लस x1 एंड y बाई हाफ y प्लस y1। ये तरीका हम अपनाते हैं टैंजेंट लिखने के लिए। तो इसका प्रूफ में अभी हम नहीं जा रहे हैं, जरूरत भी नहीं है, तो वो जेई एडवांस तक के में भी प्रूफ नहीं है। तो इस इक्वेशन की जब हम टैंजेंट लिखना चाहेंगे तो वो होगा ए एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, बी वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन, एच इंटू टू एक्स वाई है। तो एक्स वाई को हम ये लिख सकते हैं एज यू कैन सी बिलो, मैंने लिखा है। तो टू को उधर ले जाके टू एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई। उसके बाद हमारे पास है टू जी एक्स, तो जी रहने देते हैं, टू एक्स जो होगा, यहां से तुम टू को अगेन लेफ्ट में ले जाओ, तो जो टू एक्स होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स वन, और प्लस एफ टू वाई जो होगा वाई प्लस वाई वन प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो ये एक रूल है जो हमें याद रखना है, हर जगह के कर्व में अप्लाई होता है। अब इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, पहले भी कर सकते थे लेकिन अब और आसानी से कर सकते हो।
अच्छा, ये इसमें मैंने थोड़ी गलती कर दी, एक्स नहीं होगा, ये तो ये पैराबोला ही नहीं हुआ, ये एक्स स्क्वायर होगा, या तो मिट गया होगा या कुछ हुआ होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ। एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y होगा, अदरवाइज तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाता। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4y है, सारे टर्म्स हैं भी नहीं, दो ही टर्म है, एक एक्स स्क्वायर और एक वाई। तो एक्स स्क्वायर को हम लिखेंगे एक्स इंटू x1, और वाई तो 1 डिग्री का है, तो इसको लिखेंगे हाफ इंटू वाई प्लस y1। ठीक है, एक्स स्क्वायर होगा तो x(x1), वाई स्क्वायर होगा तो y(y1), एक्स वाई होगा तो हाफ ऑफ x(y1) प्लस x1y, एक्स होगा तो हाफ ऑफ x प्लस x1, वाई होगा तो हाफ ऑफ y प्लस y, जैसा मैंने नीचे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे x1 भी -4 है और y1 भी -4 है, तो ठीक है, तो ये -4x हो गया, ये एक तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ये -2 हो गया, और ये y प्लस y1 जो है वो -4 है, ऑटोमेटिकली ये y -4 हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा, तो वी विल से y -4 इज इक्वल टू 2x, दिस इज माइनस हियर, so this is 2x minus y plus 4 equal to 0. This will be your answer. लिख लिया साहब ने इसको। Yes, sir. Now we come to a question about normal, which we have just studied also in today's class. The normal chord at a point P on the parabola, पॉइंट P का मतलब है पैरामीटर उसका T है, तो पॉइंट हो गया a(t², 2a2) ऑन द पैराबोला, टेंजेंट वाला है y² इज इक्वल टू 4ax, subtends a right angle at the vertex then find P. Let's try this question. नॉर्मल कॉर्ड का मतलब ये है कि कोई भी कॉर्ड जो कि फिगर में बता देता हूँ, इस तरह का कुछ होगा पैराबोला, और इस पे कोई भी पॉइंट P है जिसका पैरामीटर है a(t², 2a2), पैरामीट्रिक पॉइंट P इज द पैरामीटर। तो इस पॉइंट पे जो कॉर्ड हम बना रहे हैं वो कॉर्ड जो होगा तो इस पॉइंट के नॉर्मल होगा, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनता उसके परपेंडिकुलर होगा, और फिर ये दूसरी जगह भी कहीं पे इंटरसेक्ट करेगा,
यहाँ पर ये नॉर्मल है, दोनों जगह नॉर्मल नहीं है, जो पॉइंट टी है वहां से नॉर्मल है, बाकी जो अगली जगह इंटरसेक्ट कर रहा है वो कोई और पॉइंट होगा। तो अब ये कह रहा है कि अगर ये नॉर्मल कॉर्ड वर्टेक्स पे राइट एंगल सबटेंड करता है, मतलब इसको अगर ओरिजिन से यहाँ पे ज्वाइन कर दिया जाए और ओरिजिन से यहाँ पर ज्वाइन कर दिया जाए, दिस एंगल इज 90 डिग्री, राइट। तो उस केस में टी की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले इसमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखना। नॉर्मल की इक्वेशन कैसे लिखोगे? ये जो नॉर्मल है, जो डॉटेड लाइन मैंने बताई है, इसका स्लोप जो होगा एम डैश, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, एम डैश इज इक्वल टू माइनस टी। नॉर्मल की इक्वेशन क्या आती थी, याद है? मैंने अभी लिखा था टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2at प्लस 82। बार बार हमें नहीं याद रखना है, एक बार हम डिराइव कर लिए, टी वाई इज इक्वल टू एक्स, यही था, नहीं इससे थोड़ा सा माइनस कहीं पे भी था, वाई इज इक्वल टू माइनस टी एक्स। एक फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, तुम्हें एग्जाम देना है। माइंड से स्लिप कर रहा होगा, मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ। इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल, अभी मैंने बताया था, तुमने नोट किया है तो तुम भी शेयर कर सकते हो मेरे से। ये था y इज इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 2at प्लस 82, यही हमने डिराइव किया था, डू यू रिमेम्बर? तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल, नॉर्मल की इक्वेशन हो गई। अब पॉइंट ये है कि ये जो नॉर्मल है, ये दोबारा से जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को अगर हम क्यू माने, तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? व्हाट विल बी देयर कोऑर्डिनेट्स? तो यू कैन सपोज कि जो क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है ए टी वन स्क्वायर, ये टी वन, वहां पर टी दिया, यहाँ पर टी वन ले लेते हैं, तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ये हो जाएगा 2a t1 इज इक्वल टू माइनस टी, और x हो जाएगा a t1 स्क्वायर, हो जाएगा प्लस 2at
प्लस ए टू के, ऐसा कर सकते हैं। और एक काम हम तुरंत कर सकते हैं यहाँ पर कि ए जो है हर टर्म में आ रहा है, वो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगले स्टेप में हमारे पास आ जाएगा, इसको और इसको एक साथ अगर क्लब करते हैं तो 2 इंटू टी वन माइनस टी हो जाएगा, और इसको एक साथ क्लब करते हैं लेफ्ट में ले जाके, तो टी कॉमन हो जाएगा प्लस टी, और बचेगा टी वन स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब हम यहाँ से टी वन माइनस टी दोनों से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा प्लस टी, और टी वन माइनस टी अगर कॉमन ले लिया तो टी वन प्लस टी बचेगा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज टी वन माइनस टी, ये हो जाएगा 2 प्लस टी टी वन प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली टी और टी वन तो सेम नहीं है, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो ये टी माइनस टी वन तो 0 नहीं होगा, ये 0 हो जाएगा। तो जब हम इसको 0 करेंगे तो टी वन आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टी। तो दिस इज द पैरामीटर ऑफ दिस अनदर पॉइंट क्यू। इस पॉइंट क्यू का जो पैरामीटर है ये, इसको हम कई बार ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2/t। ये बुक्स में इस तरीके से जनरली दिखता है। इज दिस क्लियर आरुषि एंड आशीष? ओके, तो यहाँ तक पहले नोट कर लो, अब हम ऑलमोस्ट डन पे हैं। अब लास्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, उसके बाद ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, T1 इज नॉट इक्वल टू T, इसलिए इसको हम 0 नहीं बना सकते। So what you can do now is, OP का जो स्लोप है, ये वाली जो लाइन दिखती है OP, और OQ का जो स्लोप है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ OP इंटू स्लोप ऑफ OQ शुड बी -1, अगर दोनों 90 डिग्री पे है। यही कह रहा था कि वर्टेक्स पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। OP का जो स्लोप है, क्योंकि O इज ओरिजिन, तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। दिस इज हाउ वी फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, तो जब हम ये स्लोप OP निकालना चाहेंगे, तो
x1 y1 तो 0 0 है, तो y2 बाई x2 बन जाएगा सीधा सीधी, तो ये हो जाएगा 280 बाई 8t²। और स्लोप ऑफ OQ निकालेंगे तो हो जाएगा 281 बाई 81²। दिस इज इक्वल टू -1। अब a और a कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी a और a कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर t और t कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे t1 और t1 कैंसिल हो रहा है। दिस विल बिकम 4 इज इक्वल टू -t इंटू t1। अब हमने जो यहाँ पर किया था कैलकुलेशन, उससे हमें t1 के बारे में पता चल गया था कि t1 इज इक्वल टू दिस, ये है T1, ठीक है। या इसको भी ले सकते हैं, दोनों एक ही चीज है, तो पहले वाले को ले रहे हैं। तो t1 को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो माइनस माइनस के लिए प्लस t² प्लस 2 बाई 2, और फिर ये t और ये t कैंसिल हो जाएगा, then t² will become equal to 4 minus 2, that is 2. This means t will become equal to plus minus 2. दो पॉसिबल वैल्यूज आती है t की, this will be your answer. Is it clear? Let's come to the next question. In the next class, we will start ellipse. Okay. So be ready for ellipse in the next class by studying already the basic concepts so that you can cope with it easily and swiftly. So this question says, find the coordinates of a point on the parabola y² equal to 8x whose focal distance is 4. फोकल डिस्टेंस का क्या मतलब होता है? फोकस से जो दूरी है पॉइंट की, दैट इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस। डू दिस क्वेश्चन, then we'll discuss it right now.
पैराबोला स्टैंडर्ड पैराबोला है, राइट ओपन, वर्टेक्स इज ओरिजिन। ए की वैल्यू क्या है? ए इज 2, 4ax, so a is 2, 2,0 is the focus। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें पता करना है, जिसका फोकस से जो डिस्टेंस होगा वो 4 यूनिट्स होगा। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो यहाँ पर एक चीज तुम यूज कर सकते हो कि इन अ पैराबोला द डिस्टेंस फ्रॉम फोकस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स इज इक्वल टू 1। या हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। व्हाट इज द डायरेक्ट्रिक्स? दिस इज अ लाइन which is x is equal to minus a, मतलब यहाँ पे -2 हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स। तो P पॉइंट का जितना फोकस से दूरी होगा उतना ही दूरी डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। तो जो PS है वो PM के बराबर होगा। फिगर में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हम लोग बनाएंगे तो दोनों बराबर होगा, PM और PS बराबर होंगे बाय द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो जब हम PS निकालते हैं तब PM निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होगा, अगर P का हम x कोऑर्डिनेट मान ले x है और y कोऑर्डिनेट y है, या x डैश और y डैश मान ले, तो जो डिस्टेंस होगा PM का वो होगा x डैश माइनस -2 विच इज x डैश प्लस 2, राइट। ये जो पूरी दूरी हो जाएगी x डैश प्लस 2 हो जाएगी। और ये दिया हुआ है 4, PS 4 दिया हुआ है, मतलब PM भी 4 है, जिससे x डैश की वैल्यू क्या निकल जाएगी? 4 - 2 दैट इज 2। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकल गया। अब इसमें इस पॉइंट का जब x कोऑर्डिनेट पुट करेंगे तो देयरफॉर y डैश स्क्वायर विल बी 8 into 2 which is 16, तो y डैश विल बी इक्वल टू प्लस माइनस। तो जो पॉइंट है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, दो पॉइंट मिलेगा, एक ऊपर एक नीचे। तो p कुड बी 2,4 और p कुड बी 2,-4, इसको p डैश बोल सकते हैं। Is this clear? Arushi, now you are only remaining in the class. Others have gone one by one, slowly and gradually. ये clear है आरुषि? If you have written it, then I will give you one more question. Next question which you can do is also type of theory, but sometimes it comes as a question also. Prove that end of uh, tangents, prove that tangents at the end of focal chord, prove that tangents at the end of focal chord intersect at directrix and are perpendicular to each other. Try this. ये कई जगह एज अ थ्योरी भी यूज होती है। इसका मतलब डायग्रामेटिकली ये हो गया कि अगर हम स्टैंडर्ड पैराबोला लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, और इसका फोकस होगा a, 0,
और फोकल कॉर्ड कोई भी बना लेते हैं अगर, दिस इज अ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड मतलब विच पासेस थ्रू द फोकस। इसका जो दो एंड पॉइंट है पी और क्यू, यहाँ पर जो टैंजेंट्स बनाए जाएंगे, एक यहाँ पे बनेगा और एक जो है यहाँ पे बनेगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एट 90 डिग्री। और कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे? एट डायरेक्ट्रिक्स। यह डायरेक्ट्रिक्स x is equal to minus। This is what you have to prove। अगर हम इसकी जगह कोई दूसरा फोकल कॉर्ड भी लेते हैं तो वो भी ऐसे ही बिहेव करते हैं। जैसे मान लो मैं ये वाला फोकल कॉर्ड ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो टेंजेंट बनेगा इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा, वो भी डायरेक्ट्रिक्स पर ही इंटरसेक्ट करेगा और वो भी एक दूसरे के 90 डिग्री होगा। जस्ट ट्राई दिस वंस। Are you trying, Ayushi? Have you understood the question? Hello, Arushi, you are only there, so you need to reply. Otherwise, I won't be able to understand whether I'm communicating or not. Hello. चलो करो, ट्राई करो पहले, उसके बाद डिस्कस करेंगे। But you need to speak up or at least write on the chat box. You are there mentally also, not only physically.